Good afternoon, class. Our today's subject is managerial economics. Managerial economics. In the previous lecture, we have seen the meaning of managerial economics, definition of managerial economics, scopes, its nature, and all that. In today's lecture, we will see principles of managerial economics. In today's lecture, we will study the principles of managerial economics. Okay. Principle of managerial economics consists of three types of principle. First one is principle of how people makes decision. How people make decision. Second one consists of principle of how people interact. How people interact. And third one is how economic work as a whole. How economic Okay, there are three principles or three heads of principles of managerial economics. First one is how people make the decision. Second one, how the people interact. And third one is how economic work as a whole. Now in that we have some sub points here. First one is people face trades off. People face trade-offs. Second one is opportunity cost. Third one is rational people think at margin. And fourth one is people respond to incentives. People respond to incentives. Now we will see these principles one by one. First one is people face trades off. What does it mean? To make the decision, people have to make the choice where they have to select among the various options available. What this principle say? This principle say people face trades off. That means यदि person के पास options है तो उन्होंने कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, वो जो बेनिफिशियल ऑप्शन है वही पर्सन और वही परचेसर और वही कंज्यूमर सिलेक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैव ए बी सी डी दिस फोर ऑप्शंस, then he will select the most beneficial option which is suitable to him. Okay. Second principle is opportunity cost. Opportunity cost means the cost which is incurred by the person by not taking that option. For example, the person has selected the option A. That means he have missed the option B, C and D. The benefits or the opportunity which he will or she will receive from this option which he have not chosen
or she have not chosen, that will be called as opportunity cost. यानी बी सी डी इन तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी जो थी वो उसने रिजेक्ट कर दी, तो जो रिजेक्ट की हुई है वो रहेंगे उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, द कॉस्ट विच इज डिक्लाइन बाय द पर्सन will be called as opportunity cost. Okay, third one is rational people think at margin. People usually think about the margin or profit they will earn before investing their money or resources at a particular project or in a particular services. Okay, whenever we will invest or whenever we invest in some हम लोग बोलेंगे कोई हमारी प्रॉपर्टी है, कोई बॉन्ड्स है, जब भी हम इन सब में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले उसका मार्जिन, कि हमें इसमें इन्वेस्ट करने से कितना प्रॉफिट होने वाला है. बट ऑब्वियस है, रैशनल पीपल है, जो नॉर्मल पर्सन है वो इसके बारे में डेफिनेटली सोचता है. और यदि कोई कंपनी है तो वो ये सोचती है कि इफ़ मैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता हूँ या पर्टिकुलर सर्विस मार्केट में प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे इससे कितनी इनकम होने वाली है. ओके, एंड लास्ट वन इज पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स. जहाँ ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा, ज़्यादा उसे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ रहेगी. इन सबसे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ मीन्स एक कोई पर्सन है जो कम लेवल पे है लेकिन वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे प्रमोट करना एक कोई भी अपर अथॉरिटीज़ का काम होता है. और ये प्रमोशन और यही इंसेंटिव्स मोटिवेट करते हैं पर्सन को और वर्क हार्ड करने के लिए ताकि और फ्यूचर में उसका प्रमोशन हो जाए. इन शॉर्ट, इंसेंटिव्स वर्क एज अ मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज़. ठीक है, इन शॉर्ट इंसेंटिव्स वर्क एज अ मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज़. गॉट इट? देखिए, प्रिंसिपल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों को प्रिंसिपल पे एक क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में. एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, what is the meaning and explain the meaning and definition of managerial economics and explain in detail the principle of managerial economics. Then you have to draw this chart and you have to write the explanation of each and every point one by one. Okay, second option है हमारे पास how the people interact, यानी person कैसे interact करेगा. उसमें अगेन हमारे पास points है. We will write it like this. First one is trade can make everyone better off. Trade can make everyone better off. Second one is market are usually a good way to organize economic activity. Markets are usually a good way to organize economic activity. And third one is government can sometimes improve market outcomes. Improve market outcomes. Okay. अब देखिए इन दैट नाउ हाउ द पीपल इंटरैक्ट. अब पर्सन कैसे इंटरैक्ट करेगा. ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ, यानी ट्रेडिंग करने से, बिजनेस करने से, एक्सचेंज करने से सभी की लाइफ बेहतर हो सकती है. द मैन कैन नॉट लिव इन द आइसोलेशन. कोई भी पर्सन अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है कि मैं ही कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है मैं ही प्रोड्यूस करूँगा और मैं ही कंज्यूम करूँगा. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. हर एक पर्सन को दूसरे पर्सन पे, दूसरे प्रोडक्ट पे, दूसरों की सर्विसेज पे हमें डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ. फॉर एग्जांपल इन अर्ली इन द मॉर्निंग इफ़ आई नीड अ कॉफ़ी, अ कप ऑफ कॉफ़ी,
then what I will need? I will need water, I will need milk, sugar and coffee. तो मुझे किसके किसके साथ ट्रेड करना पड़ेगा? पहले तो जाके मिल्क लाना पड़ेगा, ये हो गया एक सर्विस। सेकंड, मुझे जाके कॉफ़ी लानी पड़ेगी उस पर्सन से जिसके पास कॉफ़ी मिलेंगी, ये हो गया मेरा सेकंड ट्रेड। थर्ड हो जाएगा हमारा, मुझे शुगर लगेंगे, अगेन आई विल परचेज द शुगर। ओके, तो एक हमारी एक नीड और एक वांट सेटिस्फाई करने के लिए हमें नियर अबाउट 3 से 4 कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इट इज़ नॉट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट कि हम हाँ किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, भैया लो मैं लिख के दे रहा हूँ, मुझे 1 किलो शक्कर दो। इट इज़ अ बेसिक word which is used for the communication, that is contract. Second point is market are usually a good way to organize economic activity. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी एक्सचेंज करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, एंड दैट प्लेटफॉर्म इज़ कॉल्ड एज मार्केट। दैट प्लेटफॉर्म इज़ कॉल्ड एज मार्केट, वेयर आप क्या करोगे, एक पर्सन आएगा जो प्रोड्यूसर है वो आएगा अपने प्रोडक्ट्स सेल करेगा, और सेकेंड पर्सन जो कंज्यूमर रहेगा वो आएगा वो उसे परचेस करेगा। दैट विल दिस प्लेस इज कॉल्ड एज मार्केट, वेयर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स कम्स एंड एक्सचेंज देयर नीड्स एंड वांट्स एंड सेटिस्फाइड देयर नीड्स एंड वांट्स। तो हम लोग करें ये बोल सकते हैं मार्केट आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स। अभी कोई प्रोडक्ट्स पे, कोई सर्विसेज पे गवर्नमेंट की होल्डिंग होना कंपलसरी है, सो दैट जो मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, लोग मैनिपुलेट करते हैं, स्टोरेज करके रखते हैं, बाद में उसके रेट बढ़ गए, रेट बढ़ा लेते हैं मार्केट में, पहले उसकी क्या करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे, शॉर्टेज है, इसका शॉर्टेज है, तेल का शॉर्टेज है, और हम लोग बोलेंगे कुछ जो डेली यूज़ में हमें बेसिक हमारी नीड्स है उसका शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, और उसके बाद उसे क्या करते हैं, प्राइसेस बढ़ने पर उसे मार्केट में सेल आउट करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ ना हो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट में अपना होल्डिंग रखती है। ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ हाउ द पीपल विल interact. Okay, third one is how economic work as a whole. In that first point is a country's standard of living depends on its ability to produce goods and services. Second point is prices rises when government prints too much money. Third one is society faces a short run trades off between inflation and unemployment. Okay, now third principle is how the economic work as a whole. थर्ड प्रिंसिपल क्या है कि हमारा जो पूरा इकोनॉमिक है वो एज अ होल किस तरह से वर्क करता है, और ये इसका सबसे पहला इफेक्ट होता है कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। हर पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। यदि किसी कंट्री में हर प्रोडक्ट
और हर सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, तो ये किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत अच्छी बात है, जिससे आपका क्या ग्रो होगा, जीडीपी रेट भी ग्रोथ होगा। ये बताता है यदि आपका कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज आपको इंपोर्ट ना करते हुए कंट्री आपकी, जो कंट्री के हमारे देश के ही प्रोड्यूसर जो है वो आपके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यदि कैपेबल है, तो ये कोई भी कंट्री के लिए बहुत ही ग्रोथ की बात है, क्योंकि जहाँ का पैसा उसी कंट्री में रहेगा। इट नो एनी कंट्री विल नीड टू इम्पोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज, आउटसाइडर की हमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सेकेंड पॉइंट इज प्राइजेज राइजेज व्हेन गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच नोट। अभी देखिए, यदि गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा मार्केट में इशू कर दिया, बहुत सारा, तो इससे क्या हो जाएगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि हर कोई पर्सन कैपेबल रहेगा मर्सिडीज़ का परचेस करने के लिए। कोई भी पर्सन आए दिन गोल्ड खरीद लेगा, डायमंड खरीद लेगा, तो इससे क्या होगा, हर इंसान की परचेसिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो उससे बढ़ जाएगी। इसका इफेक्ट होगा कि जब पता है डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, तो प्रोड्यूसर भी उसके प्राइजेस के रेट्स बढ़ा देगा। ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज प्राइजेज राइजेज व्हेन गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच नोट्स, ठीक है, और टू मच मनी। थर्ड वन इज सोसाइटी फेसेस अ शॉर्ट रन ट्रेड्स ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ मीन्स जो छोटे छोटे बिजनेस है वो बंद हो जाते हैं। कब बंद होते हैं, जब अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है या फिर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाता है। तो इन्फ्लेशन आने की वजह से बोलते हैं ना, मार्केट में मंदी आ गई, लोगों को, इन्फ्लेशन मीन्स मंदी, मार्केट में काफ़ी लोगों की जॉब्स चले गई, बिजनेस बंद हो गए, उसका धंधा तो ठप हो गया, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। तो ये कब होता है, जब ये सारा चीज़ किस पे इफ़ेक्ट करता है, ऑल ओवर दी कंट्री, इसका पूरा इफेक्ट होता है ऑन ऑल ओवर दी कंट्री। ओके, नाउ वी हैव डन विद द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अगेन आई विल रिवाइज यू दिस प्रिंसिपल्स इन शॉर्ट. Please all the students draw this chart. This chart will be very much helpful for you in the examination also. By this chart you can remind the points. Okay, आप एग्जाम में लिखते टाइम भी इस पहले ये चार्ट्स ड्रॉ कीजिए और फिर वन बाय वन ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कीजिए. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. इन दैट फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ हाउ द पीपल मेक डिसीजन. डिसीजन कैसे लेंगे, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा वैसे हम लोग डिसीजन लेंगे. सेकेंड वन इज़ हाउ द पीपल इंटरैक्ट एंड थर्ड वन इज़ हाउ इकोनॉमिक वर्क एज अ होल. पूरी इकोनॉमिक कैसे एज अ होल वर्क करेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, हमारी कंट्री का जीडीपी रेट किस पे रहेगा, ये सारा डिसीजन हमारा किस में होगा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के थ्रू. ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दैट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी ग्रुप्स और faculties. Okay, if any students have any query or any point is not explained or they does not understand any point, please write in the comment box. I will definitely solve your problem. Thank you.